Dear student, today we will learn about the acid, bases and salts. This is the part 5. Before this, I have given you 4 parts. So today we will study about the properties of acid. Now, properties of acid बोले तो acid के गुण. So first, acid have sour taste. acid have sour taste. sour बोले तो एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं. ओके. सेकेंड, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. यानी एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में. ठीक है. एसिड बहुत डेंजरस है तो डेंजर में बोले तो रेड. ओके. एसिड टर्न मिथाइल ऑरेंज टू रेड. देखिए ये भी रेड मतलब डेंजर. मतलब एसिड्स आर डेंजरस टू अस. ओके. नाउ फोर्थ वन, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. Acid solution conduct electricity means aqueous solution of acid conduct electricity means they are generally electrolytes. Okay. Now fifth number, acid reacts with metal to form hydrogen gas. एसिड जो है वह मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं. मतलब एसिड देखिए मेटल प्लस एसिड डाइल्यूट एसिड. ओके. तो क्या बना रहे हैं? मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड. एसिड बोले तो डाइल्यूट. ओके. तो दे फॉर्म मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. वो मेटल साल्ट देते हैं और कौन सा गैस देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं. तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप. जिंक इज द मेटल एंड H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 इज ए एसिड. नाउ व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ H2SO4 देन इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. सो मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म मेटल साल्ट. मेटल जिंक salt, metal salt plus hydrogen gas. Second one, zinc plus hydrochloric acid. Zinc, metal, hydrochloric acid, they form zinc chloride. This is the salt. Okay, this is the zinc chloride is a salt. Plus it form hydrogen gas. Third one, magnesium. Magnesium is a metal. Okay. And H2SO4 is an acid. When magnesium metal react with acid, then it form magnesium sulfate which is salt plus evolve hydrogen gas. Hydrogen gas देता है. Now fourth one, calcium reacts with hydrochloric acid, then it forms calcium chloride CaCl2 plus H2. All these acids are should be dilute in nature. Okay. Now note, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड. हाइड्रोजन गैस का हम पहचान कैसे करेंगे? जब हाइड्रोजन गैस किसी से इवॉल्व करता रहेगा, निकलते रहेगा टेस्ट ट्यूब से, तो अगर हम कैसे पहचाने कि उससे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? तो हम क्या करेंगे? एक माचिस की तीली ले जाके वहां पर टेस्ट ट्यूब को ऊपर रखेंगे. अगर हाइड्रोजन गैस पॉप पॉप साउंड के साथ अगर मतलब पॉप पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा तो समझेंगे क्या कि वो हाइड्रोजन गैस है, दूसरा कोई गैस नहीं है. नाउ 6 एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस along with water. देखिए यहाँ पर मेटल कार्बोनेट reacts with acid to form salt
plus carbon dioxide plus water. Metal carbonate react with acid to form salt to form carbon dioxide along with water. So we will see the example. First one, sodium carbonate. Sodium is the metal, carbonate CO3 ion. Okay, sodium carbonate, metal carbonate. Okay, and acid, HCl is an acid. Now it form NaCl, which is salt, CO2, carbon dioxide plus water. Okay, now second one, CaCO3, calcium carbonate plus sulfuric acid. CaCO3, calcium carbonate plus sulfuric acid. So this form metal salt, calcium sulfate plus CO2 plus H2O. Okay, third one, MgCO3, magnesium carbonate plus hydrochloric acid. Then it forms MgCl2, which is salt, metal salt. Magnesium is a metal salt plus CO2 plus H2O. Now zinc carbonate plus sulfuric acid. Zinc sulfate is a metal salt, CO2 H2O. तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि CO2 और H2O सब में क्या है, कॉमन है. जब भी कोई मेटल कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 और वाटर क्या रहेगा, कॉमन. अब मेटल साल्ट वो अलग अलग आपका बनता रहेगा. ओके, Cl कोई जिसमें एसिड हो, एसिड में Cl हो तो Cl लगा हुआ रहेगा. ठीक है, SO4 हो, सल्फेट आयन, तो SO4 लगा हुआ रहेगा. मेटल वही रहेगा और इसका जो आपका आयन है हाइड्रोजन के छोड़कर वो उसमें जुड़ जाएगा. ना acid react with metal hydrogen carbonate. Acid react with metal hydrogen carbonate यानी metal bicarbonate to form salt plus carbon dioxide plus water. Now we will see the reaction. Sodium bicarbonate plus HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो यहाँ हम क्या देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O. सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O. तो सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है. यहाँ से देखिए आप, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल बाइकार्बोनेट, दिस इज द मेटल बाइकार्बोनेट. HCl एज एन एसिड, साल्ट सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O, वाटर. ओके, तो ऐसे ही सब बनते जाएंगे. और भी रिएक्शन आपका दिया हुआ है. सेकेंड वन देखेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaSCO3 का होल 2 प्लस HCl. तो क्या बना, CaCl2 बना, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O. ओके, नाउ Mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. मैग्नीशियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O. CO2 और H2O सभी में कॉमन रहेगा. और साल्ट जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि मेटल और जो एसिड में जो बच रहा है हाइड्रोजन छोड़ के वो उसमें जुट जाएगा. इसका मैकेनिज्म भी है लेकिन मैं कॉपी पे नहीं बता सकता. नाउ जिंक बाइकार्बोनेट, ठीक है, प्लस HCl ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2O. रिएक्शन विल बी सेम, CO2 H2O सब में कॉमन रहेगा, सिर्फ यही चेंज होगा जैसे मैंने पहले बताया, जिंक और इसमें जो हाइड्रोजन को छोड़कर जो पाए जा रहे हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे अपने अपने वैलेंसी को लेकर. नाउ पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. This from potassium chloride plus CO2 plus H2O. Now these are the reaction. Okay,
of metal bicarbonate plus acid. Now हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम कैसे जाने कि जो गैस निकल रही है इतने रिएक्शनों में वो सब CO2 ही है, कोई दूसरी गैस नहीं है, हम कैसे जानेंगे? तो देखिए यहाँ पर व्हेन CO2 इज पास थ्रू सेलेक्ट लाइम यानी लाइम वाटर से जब पास किया जाता है देन ए व्हाइट प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, तो क्या बनता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है जो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ देखिए सेलेक्ट लाइम प्लस CO2 तो बनता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट PPT प्लस वाटर। ओके, यहाँ देखिए अब यहाँ रिएक्शन हम देखते हैं CaOH का होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो यहाँ क्या बन रहा है? CaCO3 जो है वो आपका क्या है? व्हाइट प्रिसिपिटेट है, जो प्रिसिपिटेट मतलब बोले तो जो तली में जाके बैठ जाएगा। जब आप टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लीजिएगा और अपने मुंह से उसको फूंकिएगा तो देखिएगा क्या कि आफ्टर सम टाइम का उसी टाइम देखिएगा कि वो पूरा मिल्की हो गया, ठीक है, मिल्की व्हाइट हो गया। और तो क्या है? वो CaCO3 का फॉर्मेशन हुआ। CaCO3 क्या है? व्हाइट होते हैं, इसलिए वह आपका CaCO3 था प्लस वाटर था। नाउ 7 नंबर प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेस बोले तो अल्कालीज और बेस में थोड़ा सा अंतर है, देखेंगे हम लोग बाद में। एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करेगा और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। दिस इज यूज टू ओवरकम द एसिडिटी। ओके, नाउ वी विल सी द रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ओके, दिस इज द बेस and this is the acid. Sodium hydroxide plus base plus acid form salt plus water. This is very common reaction. This process is also called neutralization process. इसको क्या कहते हैं? कौन सा प्रोसेस करते हैं? इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, क्योंकि यह एक बेस को डालकर हम उसके एसिड वाले गुण को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं, इसलिए यह न्यूट्रलाइज कर देता है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 8 ऑफ एसिड। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। यहाँ देखिए मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, साल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या बना रहा है? CuCl2 प्लस H2O, CuCl2 प्लस H2O। तो दिस इज द मेटल ऑक्साइड, दिस इज द एसिड, दिस इज द साल्ट एंड दिस इज द वाटर। ना और भी रिएक्शन है इसमें, 1 by 1 देखेंगे अभी। ना सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या देखते हैं क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या होता है? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। ओके, नाउ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl, तो क्या बनेगा? CaCl2 प्लस H2O। जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ZnSO4 यहाँ से, जिंक यहाँ से, H2O। इसी तरह से यहाँ देखिए आयरन HCl, तो AfCl2 और H2O। पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O। तो these are the examples of reaction of metal oxide with
acid to form salt plus water. Now this is the last property of acid. Acid have corrosive nature. Corrosive मतलब corrode करने वाला, मतलब बर्न कर देना या जला देना, खराब कर देना। तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो मिनरल एसिड, मिनरल एसिड में कार्बोनिक एसिड को छोड़कर द मिनरल एसिड काउज सीवर बर्न ऑन द स्किन एंड दे ईट अप मेटल ग्रेजुअली। ताकि मिनरल एसिड जो है, जैसे में H2SO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, फिर ओलियम हो गया, डाइफॉस्फोरिक एसिड हो गया, परक्लोरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, दीज ऑल आर द स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। एंड वो क्या, वो जब गिरेंगे आपके स्किन पर तो आप क्या करेंगे, स्किन को जला देंगे। और उनको मेटल के कंटेनर में हम लोग नहीं रखते हैं जनरली एसिड को। क्यों? क्योंकि एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। ओके, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म मेटल साल्ट, you know very well. So they are stored in they are not stored in metal container, they are stored in container made up of glass and ceramics except hydrofluoric acid. यह ग्लास में भी नहीं कंटेन किया जा सकता क्योंकि यह सिंगल इकलौता एसिड है जो ग्लास के कंटेनर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन। ओके, नाउ एसिड तो खत्म हो गया। अब हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस क्या है? जिस तरह से एसिड टेस्ट में खट्टे होते थे उसी तरह से बेस क्या है, खट्टे नहीं है, दे आर बीटर इन टेस्ट। Bases have opposite nature than acid. बेसिस का नेचर क्या है, एसिड के अपोजिट है। तो बेसिस का डिफिनीशन क्या है? बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बीटर टेस्ट। आप बेसिस के बारे में देख सकते हैं। एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरस, आप फेरस हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। These all are the examples of bases. Bases are generally metal oxide and metal hydroxide. It means generally all the metal oxide, metal plus oxygen, जैसे यह metal plus oxygen, metal oxide and metal hydroxide. hydroxide बोले तो OH उसमें जुटा हुआ रहना चाहिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। जितने भी OH वाले हैं वो सब हाइड्रोक्साइड। नाउ अल्काली, मैंने पहले बताया था कि अल्काली और बेसिस में थोड़ा अंतर है, देख लेते हैं हम लोग। अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्काली। ओके, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। Now, according to Arrhenius concept, Arrhenius is the name of the scientist. Bases are those substances which dissolve in water to produce hydroxide ion. Hydroxide आयन बोले तो OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। बेसिस वैसे सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। तो देखते हैं बेस आर टू टाइप्स,
strong base and weak base. Okay, bases are of two types, a strong base and weak base. A strong base are completely ionized in water. फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस उसको कहेंगे जो वाटर में जाने के बाद पूरी तरह से घुल जाए और ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यह प्रोड्यूस करे। पहले तो पूरा तरह से घुल जाए, फिर उसके बाद क्या करे? बहुत सारा हाइड्रोक्सी आयन या हाइड्रोक्साइड आयन दे। वीक बेस किसको कहेंगे? जो पार्शियली आयोनाइज करे, मतलब पूरा आंशिक रूप से आयोनाइज करे और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करे। स्मॉल मतलब बहुत कम। जैसे में आप एग्जांपल दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जांपल। इसमें एग्जांपल दे सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर द वीक बेसेस। ओके, या अल्कालीज। तो बेस के बारे में प्रॉपर्टी बच गया है जो हम कल अब डिस्कस करेंगे। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं। दिस इज द पार्ट 5 ऑफ एसिड बेसेस एंड साल्ट्स। ओके, सो यू हैव टू मेक द क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक एटलीस्ट 20 आप कम से कम 20 क्वेश्चन बनाएंगे एसिड बेसेस साल्ट। अभी तक जो पढ़ाई हुई है इसको मैं कल आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ओके।